عزیز بچوں، آج ہم پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے سلسلے میں آپ سے بات چیت کریں گے اور ہماری بات چیت کا موضوع ہوگا ہمارا قومی ترانہ، جو حفیظ جالندھری نے لکھا اور جنہیں آپ نے سنا ہوگا ان کو ابو الاثر حفیظ جالندھری بھی کہتے ہیں۔ حفیظ 82 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ بہت ہی اچھے شاعر تھے، کئی کتابیں لکھی انہوں نے، بچوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی بہت کچھ لکھا انہوں نے اور بڑوں کے لیے بھی لکھا۔ شاہنامہ لکھا 4 حصوں میں، شاہنامہ اسلام کے نام سے۔ اسی طرح شاعری کی ان کی بہت سی کتابیں ہیں، نثر کی ان کی بہت سی کتابیں ہیں اور 82 سال کی عمر پائی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آج سے 40 برس پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آج وہ مینار پاکستان کے اس حصے میں، جس کو اب ہم نے ایک نیا نام دیا ہوا ہے گریٹر اقبال پارک، اس میں وہ ایک طرف دفن ہے اور ان کا مزار وہاں بنا ہوا ہے۔ اور پاکستان کے لیے ان کی خدمات بہت ہیں اور جیسا میں نے ابھی کہا عزیز بچوں کہ انہوں نے آپ لوگوں کے لیے بہت کچھ لکھا، نظمیں لکھی بچوں کے لیے۔ پوری ان کی ایک کتاب ہے جو 4 حصوں پر ہے مشتمل اور جس کا نام ہے حفیظ کے گیت اور نظمیں۔ میں ابھی یہ کتاب میں ساتھ لے آیا ہوں، میں یہ دکھاؤں گا آپ کو، آپ ذرا دیکھیے۔ یہ کتاب ہے اور یہ 4 حصوں میں ہے اور ایک مدت پہلے یہ شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں بہت سی دلچسپ نظمیں ہیں اور ان کا کمال یہ ہے حفیظ کا کہ یہ بچوں کی سطح پہ آسان لفظوں میں باتیں کرتے ہیں اور بڑی ہی عمدہ دلچسپ نظمیں مثلاً اب دیکھیے یہاں ایک نظم چھوٹی سی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ چڑیا بھی اور ننھے میاں، آ جا رہی چڑیا، آ جا رہی چڑیا، منڈیر پر کیوں کرتی ہے چوں چوں، آ جا تجھے میں دانا کھلاؤں، روٹی کے بھورے چھت پر بکھیروں، لے اپنا کھاجا، کھا جا ری چڑیا۔ سن لے ری چڑیا، سن لے ری چڑیا، کیا ننھے ننھے بچے ہیں تیرے، کرتے ہیں چیں چیں اتنے سویرے، لے میں نے گیہوں چھت پر بکھیرے، یہ دانے دن کے چن لے ری چڑیا۔ تو یہ تو ہم انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پہ بچوں کے لیے حفیظ نے جو کچھ لکھا ہے اس پہ ہم ایک باقاعدہ پروگرام کریں گے اور وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ اب اس وقت تو ہم گفتگو کرنے والے ہیں حفیظ جالندھری کے اس ترانے کے حوالے سے جو ہمارا قومی ترانہ ہے، اور آپ کو معلوم ہی ہے، آپ بچپن سے پہلی جماعت سے آگے تک میٹرک تک آپ یہ ترانہ گاتے ہیں، روزانہ اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک جوش پیدا کرتا ہے، ہمارے اندر ایک نئی تحریک پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ترانہ جو ہے اس میں بڑی کام کی باتیں ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 15 مصرعوں پر مشتمل ہے، یعنی 15 لائنیں ہیں کل اس کی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یوں سمجھیے کہ اس کے 3 حصے ہیں، یہ 3 بند ہیں اور ہر بند جو ہے وہ 5 مصرعوں پر مشتمل ہے۔ تو کل ہوئے، کیونکہ 3 بند ہیں تو 15 مصرے ہوئے۔ اور ظاہر ہے قومی ترانہ ویسے بھی لمبا نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے۔ تو حفیظ جالندھری بہت ہی عمدہ شاعر تھے، لہٰذا انہوں نے چھوٹے چھوٹے مصروں میں بڑی بڑی باتیں کہہ دی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ترانے کے بارے میں کوئی گفتگو کریں، میں چاہتا ہوں، ویسے تو آپ کو یاد ہوگا یہ ترانہ، لیکن کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ہم اس 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے یہ ترانہ پڑھیں۔ چنانچہ میں یہ ترانہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر اس پہ ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، عرص پاکستان مرکز یقین شاد باد۔ پاک سرزمین کا نظام قوت و اخوت عوام، قوم، ملک، سلطنت
पाइंदा ताबिंदाबाद, शाद बाद मंजिले मुराद, परचमे सितारा व हिलाल, रहबरे तरक्की व कमाल, तर्जुमाने माजी शान हाल, जाने इस्तिकबाल, सायाए खुदाए जुलजलाल। ये बहुत अच्छा तराना है। और ये बात भी मैं यहाँ आपको बता दूँ अजीज़ बच्चों कि हर कौम का एक कौमी तराना होता है। ईरान में जाएं तो ईरानियों का अपना एक तराना है, फ़ारसी में है। ये तराना जो है ये उर्दू में है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें फ़ारसी के लफ्ज़ बहुत से आ गए हैं। और फ़ारसी हमारे लिए, फ़ारसी भी यहाँ बर अज़ीम की ज़बान थी, एक ज़माने में सरकारी ज़बान थी। तो और स्कूलों में जब हम पढ़ते थे तो उस ज़माने में स्कूलों में फ़ारसी भी पढ़ाई जाती थी। तो अब आप देखिए कि इस नज़्म में हफीज़ ने सरज़मीन पाकिस्तान को ख़िताब किया है और उसे एक बड़ा ही खूबसूरत मुल्क करार दिया है और उसके लिए दुआ की है। ये शाद बाद जब हम कहते हैं तो ये एक कलिमा दुआ है। हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस मुल्क को आबाद रख। फिर कहते हैं कि तू निशाने अज़्म आली शान। ज़ाहिर है ये एक अलामत है पाकिस्तान। कायद आज़म ने, मुस्लिम लीग ने और बर अज़ीम के मुसलमानों ने बड़ी जिद्दोजहद के बाद और कोशिश के बाद इस मुल्क को हासिल किया और उनके आली शान इरादे के नतीजे में और मुसलसल मेहनत के नतीजे में ये मुल्क ज़हूर में आया। और फिर इसे कहा कि ये मरकज़ यकीन है। मरकज़ यकीन इन मानों में है कि हमारा यकीन है अल्लाह पे और अल्लाह पर, अल्लाह की भेजी हुई उस आखिरी किताब पे और अल्लाह के नबी पे। और ये पाकिस्तान जो वजूद में आया ये वाकई ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लिहाजा इस्लाम जो है वो हमारे लिए असल में एक मरकज़ की हैसियत रखता है। फिर ये कहा आगे चल के कि पाक सरज़मीन का निज़ाम यानी इस पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो किसका मोहताज है? कुव्वत अवाम, अवाम की कुव्वत का, ताकत का और भाईचारे का। यानी गोया इसमें सबक ये दिया है हफीज़ जालंधरी ने कि कौम को इत्तेहाद के साथ, मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ और ताकत के साथ। ताकत भी बहुत ज़रूरी है कौमों को कायम रखने के लिए, कौमों को यानी ज़िंदगी की शाहराह पे आगे चलाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कभी हो। भाई अगर जिसमें ताकत ही नहीं होगी तो कैसे आप चलेंगे? लिहाजा कुव्वत भी ज़रूरी है ताकि आप अपने मुल्क का दिफा भी कर सकें और जिनके पास कुव्वत नहीं है, जो ज़ईफ़ हैं, उनकी आप मदद भी कर सकें। और फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कौम, मुल्क, सल्तनत, ये तीन चीज़ें हैं और इनके लिए भी दुआ की है कि पाइंदा ताबिंदाबाद, ए मुल्क और ए कौम और ए सल्तनत, यानी मुल्क पाकिस्तान जो है ये हमेशा ज़िंदा रहे और चमकता रहे, रोशन रहे और इसकी रोशनियाँ जो हैं दूसरों को भी, दूसरे मुल्कों को भी राहें दिखाती रहें। और आखिरी पन्ने में बहुत अहम बातें उन्होंने कर दी। मसलन ये कहा कि परचम सितारा व हिलाल, रहबरे तरक्की व कमाल। अब इसमें एक बहुत बुनियादी बात कह दी और वो क्या है कि ये हमारा परचम जो है, ये हमारा जो झंडा है, और ये भी याद रखिए कि हर कौम का एक झंडा भी होता है। और पुराने ज़माने में जब लड़ाई होती थी तो फ़ौज के बिल्कुल मरकज़ में ये झंडा नहायत ऊंचा होता था कि लोग उसे देख सकते और उस झंडे के सरबुलंद होने से कौमों में और लड़ने वाली कुव्वतों में हौसला पैदा होता था। चुनांचे ये भी मैं बता दूं बच्चों आपको कि जब ये झंडा जो है खुदा न खास्ता दुश्मन तेज़ी से हमला करता था और ये झंडा गिर जाता था तो समझ लिया जाता था कि हमारी फ़ौज को शिकस्त हो गई है। तो इसलिए इस झंडे को सरबुलंद रखना भी ज़रूरी है ताकि हम अपने सर को बुलंद कर सकें और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और अगली बात जो कही हफीज़ जालंधरी ने वो बहुत अहम है कि रहबरे तरक्की व कमाल, ये झंडा जो है इस पर ये जो चाँद और सितारे की अलामत बनी हुई है ये हिलाल है। और याद रखें कि हिलाल में और कमर में और बद्र में फ़र्क होता है। हिलाल
पहले 3 दिन जब चांद नया नया निकलता है तो पहले 3 दिन का चांद जो होता है उसको हिलाल कहते हैं, उसके बाद उसको कमर कहते हैं, और जब वो पूरा चांद बन जाता है तो फिर उसके लिए एक और नाम है और वो क्या है, बद्र। अच्छा, चुनांचे अब नया नया पाकिस्तान बना था। आपको ये भी मैं बता दूं कि ये तराना 1950 में लिखा गया। समझ लीजिए कि इसको 72 साल हो गए इस तराने को लिखे हुए। तो उस वक्त चूंकि नया नया पाकिस्तान बना था तो लिहाजा उसके ऊपर जो हिलाल बना हुआ है नाखून की सूरत में, वो इसी तरह बढ़ता 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 पूरा चांद बन जाता है। लिहाजा ये जो हिलाल की अलामत है, ये निशान है, ये इस बात को बता रहा है या उसकी वजाहत कर रहा है कि इंशाल्लाह ये मुल्क रफ्ता रफ्ता तरक्की करता हुआ बद्र कामिल बन जाएगा, पूरा चांद बन जाएगा। अच्छा, और यह परचम क्या है, तर्जुमान माजी, ये माजी का भी तर्जुमान है। और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का झंडा जो था वो यही था, सब्ज रंग का झंडा था और उस पर इसी तरह सितारा और इसी तरह हिलाल बना हुआ था, लेकिन एक फ़र्क के साथ कि पाकिस्तान बनने के बाद उसमें सफ़ेद पट्टी भी शामिल कर ली गई। अब वो सिर्फ सब्ज़ रंग नहीं है, सब्ज़ ज़्यादा है और उसके साथ एक छोटी सी पट्टी सफ़ेद भी है। और ये भी मैं बता दूं आपको अजीज़ बच्चों कि ये बहुत पुरानी अलामत है मुसलमानों की। जिहाद करने के लिए जब सलीबी जंगें हुई तो मुसलमानों के झंडे पे ये हिलाल मौजूद था, और ये असल में जवाब था उन ईसाइयों के झंडे का जिसके ऊपर सलीब बनी होती थी। और सलीब जो है आपको मालूम होगा कि ये अलामत है ईसाई मजहब की। सो वो कह रहे हैं कि जाने इस्तिकबाल, ये झंडा ऐसा है जो सिर्फ माजी और हाल ही को बयान नहीं कर रहा बल्कि मुस्तकबिल को भी बयान कर रहा है। यानी यूं समझ लीजिए कि ये झंडा एक ऐसी अलामत है जिसमें माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना और इस्तिकबाल यानी मुस्तकबिल का ज़माना, ये तीनों इसमें जमा हो गए हैं। लिहाजा ये झंडा हमारे लिए सिर्फ कपड़े का एक बना हुआ मुस्ततील झंडा नहीं है, ये हमारे लिए ज़िंदगी की अलामत है और ये अल्लाह का फैज़ है कि जिसके नतीजे में ये हमें मुल्क मिला। लिहाजा आखिर में क्या कहा, साया खुदा ज़ुल जलाल, ये एक दुआया मिसरा भी है कि यानी इस झंडे का भी हम पे साया रहे, क्योंकि झंडा जब तक खड़ा है, सलामत है, उस वक्त तक हम जिंदा हैं और फातिह हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अजीज़ बच्चों, हमें ये अज़्म करना चाहिए कि हम इस मुल्क को कायम और सलामत रखेंगे और इस मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करेंगे और अल्लाह से भी इसकी दुआ करेंगे कि अल्लाह की रहमत का साया हमारे सरों पर हमेशा कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। बच्चों, इस तराने को तवज्जो से पढ़िए और देखिए कि छोटे छोटे मिसरों में कितनी बड़ी बड़ी बातें बयान कर दी हैं हमारे इस शायर ने, जो बहुत ही बेमिसाल शायर था। और आप लोगों के लिए, जैसा मैंने पहले कहा, उन्होंने कई नज़में लिखी हैं और सिर्फ नज़में ही नहीं लिखी, उन्होंने नस्र में भी अल्फ लैला की कहानियाँ भी बच्चों के लिए लिखी हैं, उनको उर्दू में, आसान उर्दू में लिखा है। और अमर अय्यार की कहानी जो है वो भी लिखी है, लेकिन इंशाअल्लाह इस पे हम आइंदा किसी मरहले पे बात करेंगे। खुदा हाफिज़।